हाय ऑल ऑफ यू। और सब पढ़ाई चल रही है ना? चलो ठीक है। सो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज Raoult's law, and also I'm going to cover ideal and non-ideal solution in this video. So all of you, this is very important topic, so pay attention very carefully. So Raoult's law, what is the statement of Raoult's law? For a solution of volatile liquids, the vapor pressure of each component of solution is directly proportional to its mole fraction present in solution. For a solution of volatile liquids, the partial vapor pressure of each component of the solution is directly proportional to its mole fraction present in a solution. So अभी मैं क्या कंसिडर करती हूँ, टू सॉल्यूशंस कंसिडर करती हूँ. Which is made up of two volatile liquids. ठीक है. So now मैं इसको क्या बोलती हूँ? This is first component, first volatile component, and this is second volatile component. Now इसका it is a volatile liquid, तो इसका कुछ vapor pressure आएगा, and that I'll call it as P1 naught. So what is P1 naught? It is the vapor pressure of pure A, pure 1. Similarly, for second volatile liquid also, it will have some vapor pressure. And तो P2 naught क्या है? Vapor pressure of pure component 2. So in two beakers, I have taken two components which are volatile in nature. टू लिक्विड्स लिए हुए मैंने, एंड वो कैसे है? वोलेटाइल है नेचर में. सो फर्स्ट का जो वेपर प्रेशर आएगा उसको मैंने P1 नॉट बोला हुआ है, और सेकेंड कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर आएगा उसको मैंने P2 नॉट बोला हुआ है. नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम मिक्सिंग दिस टू volatile component in one beaker. ठीक है. अब यहाँ पे दोनों भी प्रेजेंट है. सो वन विल एक्सर्ट सम प्रेशर, उसको हम लोग बोलेंगे P1, और टू भी कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे P2. सो व्हाट इज P1? इट इज द पार्शियल वेपर प्रेशर of first component, and P2 is what? It is the partial vapor pressure of second component. और ये दोनों का एडिशन करके अपने को टोटल प्रेशर मिलेगा, दैट इज द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, दोनों का सम. सो PT जो होगा दैट विल बी P1 प्लस P2. Now according to Raoult's law, let's move on to next slide, last slide. Raoult's law ने क्या बताया है? पार्शियल वेपर प्रेशर मीन्स ऑफ ईच कंपोनेंट. तो पार्शियल वेपर प्रेशर को हम लोग ने क्या बोला था? P1. that is equal to, that is directly proportional to its mole fraction, that is x1, and P2 that is the mole fraction, and it is directly proportional to x2. मीन्स इसका जितना अमाउंट प्रेजेंट होगा सोल्यूशन में उतने उसके वेपर्स बनेंगे एंड उतना ज्यादा वेपर प्रेशर आएगा. नाउ फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव टू बीकर, now in this beaker I have 1 mole, and in this beaker I have 2 moles. So but obvious है इसके particles ज्यादा present है, तो वेपर फेज में भी इसके पार्टिकल्स ज्यादा जाएंगे, एंड प्रेशर जो डेवलप होगा दैट विल बी मोर ऑफ 2 moles than that of 1 mole. So that's why partial vapor pressure is directly proportional to x1. ठीक है. नाउ मैं यहाँ पे लिख देती हूँ
P1 that is equal to, it is directly proportional to x1. अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन निकल के इक्वल टू का साइन आएगा, तो इट विल बी P1 नॉट x1. Now what is P1 here? Partial pressure, partial vapor pressure of first component. P1 naught is what? Partial vapor pressure of pure one component. And x1 is the mole fraction of first component. Similarly, P2 is directly proportional to x2. So P2 is equal to P2 naught x2. What is P2? Partial vapor pressure of second component in a solution. Partial vapor pressure of a solution, partial vapor pressure of one in solution, and this is also in solution. X2, P2 naught is what? Vapor pressure of pure component 2, and this is mole fraction of second component. तो यहाँ पे सिर्फ मेरा x1 और x2 को डिफाइन करना बाकी है. x1 is what? Mole fraction of first component, and x2 is what? Mole fraction of second component. ठीक है. So ये जो अपने को रिलेशन मिला है, this relation is obtained with the help of Raoult's law. So Raoult's law also states that, इसका और एक स्टेटमेंट है that the partial vapor pressure of volatile component in a solution is a product of vapor pressure of pure vapor pressure of its pure component and mole fraction and its mole fraction. Okay, so ये जो अपने को रिलेशन, ये जो स्टेटमेंट आया है, that is developed from this only. मीन्स इसने क्या बताया था, राउल्ट्स ने इनिशियली P1 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x1 से, बट जब भी x1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन निकल के इक्वल टू का साइन आता है, तो ये जो है उसको हम लोग कैसे डेवलप करते हैं, P1 नॉट x1, दैट इज द कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होगा, दैट विल बी थ्रू आउट. Okay, all of you, this is the Raoult's law. अभी सेम यहाँ पे, अभी हम लोग ने यहाँ पे क्या लिखा है, टोटल जो सोल्यूशन का प्रेशर आएगा दैट विल बी P1 प्लस P2. तो इसको अभी हम लोग को आगे डेवलप करना है, तो हम लोग कैसे डेवलप करेंगे, बाय यूजिंग राउल्ट्स लॉ. P1 इज नथिंग बट P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2. तो ये एक अपना फॉर्मूला हो गया है, दैट इज फॉर द टोटल प्रेशर, that is for the total pressure of the solution having two volatile components. ये एक फॉर्मूला हो गया. नाउ सपोज दो मोल फ्रैक्शन है x1 और x2, उसके जगह पे सिर्फ एक ही मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, मुझे सपोज x2 का मोल फ्रैक्शन नहीं मालूम है कितना है, तो मैं x2 क्या करूंगी, 1 माइनस x1, बिकॉज मोल फ्रैक्शन ये हम लोग ने ऑलरेडी स्टडी किया, x1 प्लस x2 इज ऑलवेज इक्वल टू 1. So therefore x2 will be 1 minus x1. अब वही मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ, तो मेरा P टोटल कितना आएगा, P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट 1 minus x1. I'll just open this bracket. So now x1 is common in both this equation, तो मैं x2 को बाहर लिख लेती हूँ, सॉरी x1 is the common, so x1 को मैं बाहर लिख लेती हूँ, and this will become P1 not
माइनस P2 नॉट। तो ये भी एक इक्वेशन है, बट इंस्टेड ऑफ डूइंग इतना लंबा, बट अगर जैसे बोर्ड्स एग्जाम में, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के एग्जाम में अगर इसका डेरिवेशन आता है तो तुम लोग को ये पूरा डिराइव करके बताना होता है। बट जैसे मुझे नीट में, जेई में अगर मुझे एमसीक्यूज के लिए चाहिए तो मैं डायरेक्टली यही फॉर्मूला यूज करती हूँ, बिकॉज दिस इज वेरी इजी टू रिमेम्बर। क्योंकि P टोटल प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन इज द sum of the partial vapor pressure of components present in it, and by using Raoult's law P1 जो है वो P1 नॉट x1 होता है, और P2 जो है P2 जो होता है that is P2 नॉट x2। so this formula is easy to remember, but अगर इसका डेरिवेशन जैसे बोर्ड्स एग्जाम में आता है तो मैंने ये तुम लोग को कम्प्लीटली यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताया है। ओके ऑल ऑफ यू। नाउ नेक्स्ट इज कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज। तो अभी हम लोग ने पढ़ा दैट वाज फॉर द लिक्विड फेज, बट वेपर फेज के लिए अभी अपने को बाई मीन्स सेम राउल्ट्स लॉ को यूज करके अपने को वेपर फेज का कंपोजिशन लाना है। नाउ जैसे if the solution was having one and two component and they both are volatile, तो उन लोग लिक्विड में भी मिलने वाले हैं एंड वेपर फेज में भी होने वाले। तो लिक्विड फेज का तो अभी हम लोग को राउल्ट्स लॉ में हम लोग ने डिस्कस कर लिया, बट व्हाट अबाउट दी वेपर फेज? वेपर फेज में कितना कंपोजिशन है ये मुझे कैसे मिलेगा? सो ये जो यहाँ पे मैंने लिखा था x1 x2, so ये जो x1 है that is the mole fraction of 1 in liquid phase and this is also mole fraction in liquid phase, solution के अंदर यानी liquid phase के अंदर है। so अभी मुझे क्या करना है, वेपर फेज में क्या कंपोजिशन रहेगा ये कैलकुलेट करना है। सो फॉर फाइंडिंग द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज आई विल यूज डेल्टन्स लॉ, जो कि हम लोग ने स्टेट्स ऑफ मैटर में ऑलरेडी पढ़ा है, डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। सो डेल्टन्स ने क्या बताया था? पार्शियल प्रेशर when you have two or more gases present in a system and they are non-reactive with each other, then partial pressure of A is equal to some product of the mole fraction and total pressure। सो वहां पे अगर तुम लोग को पता रहेगा तो हम लोग ने वहां पे x ही बोला था, बट मैं यहाँ पे y बोलती हूँ क्योंकि अगर इधर भी मैं x बोलूंगी तो कंफ्यूजन हो जाएगा लिक्विड फेज एंड वेपर फेज में। तो इसीलिए हम लोग मोल फ्रैक्शन को यहाँ पे क्या करेंगे, YA डिनोट करेंगे। सो व्हाट इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर स्टेट्स when a mixture of two or more gases are present and they are non-reactive with each other, then the sum of then the product of then the partial pressure of component is product of its mole fraction and total vapor pressure of a mixture. So PA is equal to YA PT. Now what is PA here? That is the partial vapor pressure of A. YA is what? Mole fraction of A in vapor phase. And what is PT here? That is the total pressure of mixture. Okay, or we can say solution. So मैं अभी यहाँ पे क्या लिखूंगी? From this
From this, what I can write, composition of vapor phase, Y1 that is equal to P1 upon Pt. Okay, so P1 by using Raoult's law, it will be P1 naught x1, and Pt is what? P1 naught x1 plus P2 naught x2. So this is the formula which is developed by combination of Dalton's law and Raoult's law. So similarly, if I have to calculate it for Y2, so it will be what? P2 upon Pt. P2 will become what? P2 naught x2 upon P1 naught x1 plus P2 naught x2. So दिस आर दी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड आज हम लोग इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे. y1 is what? Mole fraction of 1 in vapor phase. Similarly, y2 is mole fraction of 2 in vapor phase. ठीक है, बाकी सब तो तुम लोग को पता ही है. P1 is partial vapor pressure of 1 in solution. P2 is partial vapor pressure of 2 in solution. Pt is the total vapor pressure of a solution. Then बचा क्या? P1 naught. P1 naught is the vapor pressure of pure 1 and P2 naught is the vapor pressure of pure 2. ठीक है. Let's move on to next slide. That is the Raoult's law as a special case of Henry. So Raoult's law as a special case of Henry's law. So Raoult's law क्या है? P1 that is equal to x1 naught P1 naught x1. Okay, so here P1 is directly proportional to x1, that is partial pressure of 1 is directly proportional to its mole fraction. This is from Raoult's law. अब हेनरी ने क्या बताया था? लास्ट वीडियो में हम लोग ने स्टडी किया था, दैट इज पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH(x1). यस ऑल ऑफ यू. 1 को रिमूव कर देती हूँ, 1 नहीं किया था. P is equal to KH(x). So from here also pressure is directly proportional to mole fraction. तो दोनों का भी जो रिलेशन इन लोग ने दिया है प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन के बीच में, दैट इज करेक्ट. मीन्स तुम्हारा जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा वो पर्टिकुलर कंपोनेंट का, उतना ज्यादा क्या आएगा? प्रेशर आएगा. ओके, तो सो दिस इज एप्लीकेबल फॉर लिक्विड एंड लिक्विड एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर गैस इन लिक्विड. तो कोई भी सल्यूट हो, लिक्विड हो या गैस हो, solute can be liquid or it can be gas, but the relation between pressure and mole fraction is same. जितना ज्यादा तुम्हारा solute present होगा liquid में, उतना ज्यादा क्या रहेगा? pressure रहेगा. Okay, and also from this we can conclude by Raoult's law P1 naught is constant, and from Henry's law KH is constant. So यहाँ पे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, अगर if you compare this and this equation, P1 naught is equal to KH. P1 naught is equal to KH. And therefore, Raoult's law become the special case of Henry's law. Next is, अभी हम लोग ने जो अभी तक हम लोग ने किया, that was the solution having liquid in liquid. दोनों भी components liquid थे and they were volatile. Now we are going to study is vapor pressure of solution of solid in liquid. Of solid in liquid. So now if you take NaCl, glucose, urea,
इन वाटर, तो जो सोल्यूशन बनता है वो कैसा होता है, सॉलिड इन लिक्विड होता है। NaCl लो, शुगर लो, दे ऑल आर प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट, एंड व्हेन यू डिसॉल्व इट इन लिक्विड, तो वो जो मिक्सचर बनता है, सोल्यूशन जो बनता है, वो सॉलिड इन लिक्विड वाला होता है। ठीक है, सो प्रॉपर्टीज जो है लिक्विड इन लिक्विड की, सॉलिड इन सॉलिड की, इट इज गोइंग टू बी सेम। Now to explain this solution, I am going to take one example. Now suppose मैंने दो beakers लिए. In this I have only water. And in next beaker I have water plus I am taking non-volatile solute, sugar. So ये क्या है? This is the pure solvent in beaker 1, and in next beaker you have the solution of solvent and non-volatile solute, solvent and non-volatile solute. ठीक है, now let P1 not be the, P1 not क्या है, vapor pressure of pure solvent. ओके, और ये जो सॉल्यूशन है इसका जो वेपर प्रेशर रहेगा, इस सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, P. क्या बोलेंगे, P बोलेंगे. So P1, this is what? It is the vapor pressure of solution having non-volatile solute. Okay. Now it is observed that P1 is less than P1 naught. Means vapor pressure of solution having non-volatile solute is less than vapor pressure of pure solvent. तो ऐसे क्यों होता है? What is the reason behind it? So now if you consider the surface layer of pure solvent, तो यहाँ पे सरफेस पे जितने भी मॉलिक्यूल्स है सारे के सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स है. ओके, all molecules are of water. But if you consider this solution, यहाँ पे कैसा है, शुगर हम लोग ने ऐड किया है. शुगर इज completely soluble in water. So since it is completely soluble in water, यहाँ पे क्या होगा, कुछ पार्टिकल्स जो है वाटर के रिप्लेस हो जाएंगे शुगर के पार्टिकल्स के साथ में. और शुगर कैसा होता है, इट इज नॉन वोलेटाइल इन नेचर, मीन्स वो इवोपरेट नहीं करेगा, इट वोंट गेट इवोपरेट. तो जो वेपर्स में वाटर के मॉलिक्यूल्स जाएंगे, दी वेपर्स में वाटर के मॉलिक्यूल्स जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे. नाउ फॉर एग्जांपल, अगर इसके सरफेस पे 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स है तो 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में जाते हैं. ठीक है, यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स को रिप्लेस कर दिया है, तो यहाँ पे सपोज यू हैव 7 वेपर के मॉलिक्यूल्स, सोल्यूशन में क्या हो गया,
कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स को शुगर के मॉलिक्यूल्स ने रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पे कितने वेपर्स के मॉलिक्यूल्स, मीन सरफेस पे 7 वाटर के मॉलिक्यूल्स है, तो वो 7 वाटर के मॉलिक्यूल्स वेपर में भी जाएंगे। शुगर के मॉलिक्यूल तो वेपर में नहीं जाएगा क्योंकि वो तो नॉन वोलेटाइल है। तो अभी राउल्ट्स ने अपने को बताया था कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, मीन्स तुम्हारा अगर इसका अमाउंट ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा आएगा। सो नाउ यहाँ पे पार्टिकल्स ज्यादा बन रहे हैं, इधर मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन कम है, सो इसका वेपर प्रेशर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, और इसका वेपर प्रेशर क्या रहेगा, कम रहेगा। समझ में आया? सो बाय यूजिंग दिस इज बिकॉज ऑफ राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ ने अपने को क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है दैट partial vapor pressure of a component is directly proportional to its mole fraction. So since sugar are getting completely dissolved in water, so some surface molecules of water are replaced by sugar, and sugar is non-volatile, so sugar cannot get escape into vapor phase. So if you compare these two solution, if you have 10 vapor molecules, so यहाँ पे सिर्फ 7 ही vapor molecules बनेंगे, so इसका mole fraction will be less than this solution, तो इसका vapor pressure भी less है ये वाले solution से। This is clear, and this is known as lowering of vapor pressure. ये जो हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, lowering of vapor pressure. So when we add non-volatile solute in a solvent, when we add non-volatile solute in the solvent, क्या होता है, vapor pressure gets decreased, vapor pressure gets decreased. ओके, सो अभी प्रीवियसली हम लोग ने सो ऑल ऑफ यू, अभी हम लोग ने जो कुछ भी स्टडी किया उससे अपने को क्या पता चला, वेपर प्रेशर जो है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, directly proportional to the mole fraction in a solution. Vapor pressure of the vapor pressure of the solvent in a solution is directly proportional to its mole fraction in a solution. So P1 is equal to P1 naught x1, और हम लोग यहाँ पे ये जो हम लोग ने यहाँ पे डिराइव किया था, टोटल 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 वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, तो ये जो है इससे भी हम लोग डिराइव कर सकते हैं सेम रिलेशन। अभी कैसे डिराइव करेंगे देखो यहाँ पे, PT is equal to x1 P1 naught प्लस P2 x2 naught। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, x1 be the mole fraction of solvent, P1 be the vapor pressure of solvent in solution, P1 naught will be the vapor pressure of pure solvent, x2 is the mole fraction of solute, that is sugar, non-volatile solute, P2 naught is vapor pressure of pure solute. ठीक है,
2 is for solute, 1 is for solvent. Now sugar, अभी यहाँ पे sugar है ना, we have added sugar. Sugar is non volatile, तो उसका वेपर प्रेशर आएगा क्या? नहीं आएगा ना, since solute is non volatile. Solute is non volatile, तो P2 नॉट जो है वो क्या हो गया? 0 हो गया. तो P2 नॉट 0 हो गया, इसका मतलब जो तुम्हारा प्रेशर है सोल्यूशन का, दैट इज इक्वल टू x1 P1 नॉट, x1 P1 नॉट. Okay, so here P is what? It is the vapor pressure of solution having non-volatile solute. तो तुम्हारा वेपर प्रेशर उतना ज्यादा होगा जितना तुम्हारा वाटर का अमाउंट अंदर ज्यादा होगा. सो ये सोल्यूशन में वाटर का अमाउंट ज्यादा है, इसीलिए वेपर प्रेशर भी ज्यादा है. हियर वी आर एडिंग शुगर, मींस व्हेन वी ऐड शुगर तो वाटर का अमाउंट क्या हो जाता है? कंपेयर टू दिस कम हो जाता है, एंड दैट्स व्हाई वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है. सो दिस इज आवर one of the important formula. Okay, now मुझे यहाँ पे एक तुम लोग को ये रिलेशन शो करने के लिए एक ग्राफ शो करना है, तो मैं क्या करती हूँ, ये थोड़ा मैं इरेज कर देती हूँ यहाँ का पार्ट. I'll just erase this. We'll study the graph showing the relation between the vapor pressure of solution and the mole fraction. Okay, मैं ये साइड का सब रफ कर देती हूँ एंड देन हम लोग ये ग्राफ को डिस्कस करते हैं. So this is the vapor pressure and this is the mole fraction. ठीक है. So P1 P1 is directly proportional to P1 नॉट. यहाँ पे तुम लोग को एनसीईआरटी में इसको P1 बोला है, तो हम लोग भी P1 ही बोलते हैं. ठीक है. P1 is directly proportional to, sorry, P1 is directly proportional to X1. So यहाँ पे देखो, जैसे मोल फ्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है. नाउ हियर मोल फ्रैक्शन इज 0, मींस है ही नहीं, तो वेपर प्रेशर भी 0 है. देन इट इज इंक्रीजिंग एंड हियर इट इज बिकमिंग 1. सो यहाँ पे x1 इज 1, मींस x2 इज 0, मींस ये वाले पॉइंट पे देयर इज ओनली एंड ओनली प्योर कंपोनेंट प्रेजेंट. तो यहाँ पे जो मुझे वेपर प्रेशर मिलेगा वो किसका रहेगा? प्योर का रहेगा. सो दिस इज P1 नॉट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट. दिस इज क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके, so let's move on to next topic, that is ideal solution. Now what is ideal solution? So solution, the solution which obey Raoult's law is ideal solution, is ideal solution. Now suppose I have A component in this beaker, यहाँ पे B component present है, एंड इन थर्ड बीकर मैं क्या कर रही हूँ? A और B को मिक्स कर रही हूँ. So now here there will be the bondings between A and A. Here there will be a bondings between B and B, and यहाँ पे क्या होगा? A और B का bondings होगा. So ideal solution के अंदर the interactions between A and B in ideal solution, interaction between A and B
is of same magnitude to that of A and B मीन्स ये इनका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है ए का और बी का, ए बी का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, इसका जो स्ट्रेंथ है दैट इज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड टू दैट ऑफ ए एंड बी एंड देयरफॉर मैग्नीट्यूड दोनों का भी सेम है, बॉन्ड का स्ट्रेंथ सेम है, देयर विल बी नो वॉल्यूम चेंज, no volume change. So delta V of mixture is 0. There will be no volume change as well as there will be no energy change. So delta H of mixture is also 0. सिंस इनका इंटरैक्शन बॉन्डिंग जो है वो सेम होता है, वेपर प्रेशर भी कैसा रहेगा, सेम रहेगा, वेपर प्रेशर विल बी ऑल्सो सेम. सो वेपर pressure of solution is of same order to that of pure components. ठीक है. So structurally similar components form ideal solution. So जैसे C6H6 benzene and toluene, they are structurally similar, so they make ideal solution. Ethyl bromide, ethyl iodide, they have similar structure. Chlorobenzene, bromobenzene, they form ideal solution because they are structurally similar. Now you will study this graph. Okay, we have two components. अभी अगर हम लोग ये पॉइंट पे देखेंगे, सो x1 is 1 and x2 is 0, मीन्स ये पॉइंट पे सिर्फ एंड सिर्फ कंपोनेंट A प्रेजेंट है, वन कंपोनेंट इज प्रेजेंट, तो इधर मुझे जो मोल फ्रैक्शन आएगा वो सिर्फ एंड सिर्फ 1 का होगा, सो इट विल बी प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर. सो ये है क्या मेरा P1 नॉट. अब मैं इस तरफ जैसे जा रही हूँ, x1 जो है वो डिक्रीज होते जा रहा है और x2 क्या होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है. अभी ये पॉइंट पे आके x1 0 हो जाता है, x2 1 हो जाता है, तो मुझे ये पॉइंट पे जो वेपर प्रेशर मिलेगा वो प्योर सेकेंड कंपोनेंट का वेपर प्रेशर रहेगा. सो दिस इज P2 नॉट. नाउ यू कैन सी हियर P1 is directly proportional to x1. So x1 का मोल फ्रैक्शन डिक्रीज होते जा रहा है, तो वेपर प्रेशर भी क्या होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है. So this is what we are getting is the partial vapor pressure of 1, P1. Now when we are going in this direction, x2 का मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होते जा रहा है, तो वेपर प्रेशर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. यू कैन सी, एंड दिस इज द टोटल वेपर प्रेशर. ठीक है. सो ये हो गया तुम्हारा आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ. दिस इज द ग्राफ फॉर आइडियल सोल्यूशन. सो ऑल ऑफ यू, आइडियल सोल्यूशन के लिए इतना ही था. Now we'll move on to non-ideal solution. Now non-ideal solution, सबसे पहले it do not obey Raoult's law.
ठीक है. Then the interaction between AB are of different magnitude, than those of than those in pure components. Than those in pure components. Okay. So different है. So magnitude is different. So ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है. Interaction can be stronger also than pure component, or it can be weaker also than that of pure component. Then volume on mixing is not equal to 0. So it can be more than 0 or it can be less than 0. Enthalpy of mixing is also not equal to 0. So it can be positive or it can be negative. Depend करता है solution पे. So different magnitude का interaction होगा. So stronger भी हो सकता है, weaker भी हो सकता है. So based on the magnitude of interaction, non-ideal solutions are being classified into two. That is solution showing, having or showing positive deviation, or you can say solution having negative deviation. तो ये क्या है, कैसा है, सब हम लोग अभी आगे डिस्कस करते हैं. So let's move on to next slide. Solution with positive deviation. So now here on your screen you can see one graph. तो जो green color का ग्राफ है वो आइडियल का ग्राफ है. ठीक है. तो आइडियल का जो ग्राफ है उसके ऊपर अपने को ब्लू कलर का जो ग्राफ दिख रहा है वो नॉन आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ है. ठीक है. अभी मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे एक मोल फ्रैक्शन ले लेती हूँ. नाउ एट दिस मोल फ्रैक्शन अगर मैं आइडियल के लिए ग्राफ देखूंगी, आइडियल के लिए देखूंगी वेपर प्रेशर, तो वो इतना आता है. दिस इज फॉर आइडियल. एंड वही सेम मोल फ्रैक्शन पे ये मुझे जो आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, नॉन आइडियल के लिए आ रहा है. So now what I have observed is that the vapor pressure of non-ideal solution is greater than vapor pressure of ideal solution. So why vapor pressure of non-ideal is greater than that of ideal solution? So now if interactions are weaker, अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन वीक है तो वो इजीली क्या हो जाता है, वेपराइज हो जाता है. वेपर्स ज्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा आएगा अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ. इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? सो इन solution, in non-ideal solution with positive deviation, interaction between AB is weaker than that of pure components, and that's why they get easily escaped to vapor phase and they have more vapor pressure than that of ideal gas. So I will write down interactions between the AB is weaker than those in pure components. Okay. So interaction weaker होने के वजह से, due to weak interaction,
they get easily escape to vapor phase. They get easily escape to vapor phase. Vapor phase में easily जाते हैं and therefore vapor pressure is also more according to Raoult's law. P is directly proportional to X. जितना ज्यादा जितना ज्यादा अमाउंट होगा वेपर फेस में उतना ज्यादा क्या होगा वेपर प्रेशर आएगा एंड देयरफॉर वेपर प्रेशर इज मोर. So here vapor pressure is more than that of expected from Raoult's law, that is from जो हम लोग ने आइडियल सोल्यूशन के लिए एक्सपेक्ट किया था उससे नॉन आइडियल सोल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा है एंड देयरफॉर इट इज शोइंग पॉजिटिव डिविएशन एंड देयरफॉर इट शो पॉजिटिव डिविएशन. Okay, now they are getting easily escaped to vapor phase. तो वॉल्यूम क्या होगा इंक्रीज होगा ना. सो वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर विल बी पॉजिटिव. इंक्रीज इज डिनोटेड बाय पॉजिटिव साइन. डेल्टा एच ऑफ मिक्सचर इज ऑल्सो पॉजिटिव. ओके, अब इसका एग्जाम्पल है C2H5OH प्लस साइक्लोहेक्सेन. तो कैसा होता है जब भी प्योर इथाइल अल्कोहल होगा, व्हेन यू हैव प्योर इथाइल अल्कोहल एंड नाउ यू हैव प्योर साइक्लोहेक्सेन, तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन होगा उसके कंपैरिजन में जब भी हम लोग इसको मिक्स करते हैं तो इंटरेक्शन क्या हो जाता है वीकर हो जाता है. दैट इज बिकॉज इथाइल अल्कोहल के बीच में क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है एंड जब भी हम लोग साइक्लोहेक्सेन इसके अंदर मिक्स करते हैं तो इसके आपस के जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ब्रेक हो जाती है एंड जिसके वजह से इंटरेक्शन क्या हो जाता है वीकर हो जाता है देन दैट ऑफ प्योर कंपोनेंट. मीन्स जब भी इथेनॉल जब भी प्योर फॉर्म में है तो उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स आर प्रेजेंट बट व्हेन वी ऐड साइक्लोहेक्सेन इनटू इट तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स क्या कर देता है ब्रेक कर देता है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक होने के वजह से जो न्यू इंटरेक्शंस बनते हैं वो कैसे बनते हैं वीकर बनते हैं. दिस इज क्लियर ऑल ऑफ यू. ओके, सो नाउ नेक्स्ट टाइप का नॉन आइडियल सोल्यूशन देखेंगे दैट इज सोल्यूशन विथ नेगेटिव डिविएशन. सोल्यूशन विथ नेगेटिव डिविएशन. सो नाउ हियर सेम कॉन्सेप्ट है. ग्रीन वाला जो है वो आइडियल का ग्राफ है और ब्लू वाला जो है वो नॉन आइडियल का ग्राफ है. अब मैंने ये वाला पॉइंट लिया है. नाउ एट दिस पॉइंट ये जो वेपर प्रेशर है वो नॉन आइडियल का है और ये जो वेपर प्रेशर है वो किसका है आइडियल का है. सो नाउ व्हाट आई कैन ऑब्जर्व इज फ्रॉम दिस ग्राफ वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन is greater than vapor pressure of non-ideal solution. So total vapor pressure, the total vapor pressure for any mole fraction is less than expected from ideal solution. Since it is less and therefore it is known as it is showing and therefore it is showing
नेगेटिव डिविएशन। लेस है ना वेपर प्रेशर, इसीलिए ही वो क्या कर रहा है, नेगेटिव डिविएशन शो कर रहा है। नाउ व्हाई इट इज शोइंग लेस वेपर प्रेशर, बिकॉज इंटरैक्शंस जो है उसके वो कैसे है, स्ट्रॉन्ग है। अगर इंटरैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा तो क्या होगा, टेंडेंसी टू गेट एस्केप टू वेपर विल गेट डिक्रीज। नाउ टेंडेंसी टू गेट एस्केप्ड इनटू वेपर will decrease, it means वेपर प्रेशर विल ऑल्सो डिक्रीज अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। क्योंकि अगर तुम्हारे वेपर्स के मोल्स कम बन रहे हैं तो पार्शियल वेपर प्रेशर भी क्या आएगा, कम ही आने वाला है अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। सो यहाँ पे क्या होता है, AB interactions are stronger than that of pure components, than that of pure component। तो वापस से मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर इंटरेक्शंस क्या होंगे, स्ट्रॉन्गर होंगे, तो मोर it will take more energy to get escaped to vapor phase। vapor phase में लिख ही देती हूँ मैं यहाँ पे, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन टेंडेंसी टू get escape in vapor phase decreases, therefore mole fraction decreases and therefore vapor pressure decreases। वेपर प्रेशर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके, नाउ वेपर्स में जो मोल्स बन रहे हैं वो कम बन रहे हैं, इसका मतलब इसका वॉल्यूम जो रहेगा वो नेगेटिव रहेगा एंड एंथैल्पी भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओके, नाउ इसका एग्जाम्पल जो है दैट इज CH प्लस CH3COO. Now in this case we have two beakers CHCl3 and यहाँ पे CH3COCH3। अब जब मैं इसको मिक्स करूंगी एक दूसरे के साथ तो इन लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। यू कैन सी हियर देयर इज ऑक्सीजन प्रेजेंट इन CO here, so they make hydrogen bonding on mixing, and since hydrogen bonding इन लोग mixing करने पे बना रहे हैं, hydrogen bondings are strong bonds and therefore tendency to get escaped into vapor phase decreases। Okay all of you, so this was all about negative deviation। Now next move to next topic, that is एजियोट्रोपिक मिक्सचर। सो नाउ एजियोट्रोपिक मिक्सचर जिसको आइडियल, नॉन आइडियल, पॉजिटिव डिविएशन, नेगेटिव डिविएशन वाला टॉपिक समझ में आया है, उसको एजियोट्रोपिक मिक्सचर भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो व्हाट इज एजियोट्रोपिक मिक्सचर? This is also known as azeotropic mixture is also known as constant boiling mixture, constant boiling mixture। So it is the mixture, azeotropic mixture, it is a mixture, mx यानी mixture of two or more components in liquid state which boils at one particular temperature।
मीन्स उनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो लगभग सेम होते हैं. लाइक अ प्योर लिक्विड एंड distills over in same composition. So ऐसे लिक्विड्स को एक दूसरे से सेपरेट करना, डिस्टिल्ड करना डिफिकल्ट जाता है. ओके. आइडियल सोल्यूशन एजियोट्रोपिक मिक्सचर नहीं बनाते हैं. नॉन आइडियल सोल्यूशन जो है दे फॉर्म एजियोट्रोपिक मिक्सचर. दे आर नॉन आइडियल सोल्यूशन. ओके. सो एजियोट्रोपिक मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उनके बीच में जो डिफरेंस होता है दैट इज वेरी वेरी लेस. So they boils at one particular temperature and therefore उनका distillation करना is little difficult. So there are two types of azeotropic mixture: minimum boiling azeotrope and maximum boiling azeotrope. So let us discuss minimum boiling azeotrope. So minimum में क्या होगा? Suppose we have ethanol. मेरे पास में इथेनॉल है. ओके. इसका बॉइलिंग पॉइंट है 351.3 केल्विन एंड वाटर है. ओके. जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 373 केल्विन. अभी ये दोनों को जब भी मैं मिक्स करूंगी तो मिक्सचर जो बनेगा उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा दैट विल बी 351.5 केल्विन. तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? डिक्रीज हो गया. क्यों डिक्रीज हो गया? क्योंकि जो इंटरैक्शंस है दोनों के बीच में वो कैसी हो गई? वीक हो गई. तो व्हेन इंटरैक्शंस आर वीक तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है. आई जस्ट एक्सप्लेन. ऑन मिक्सिंग प्योर कंपोनेंट्स boiling point of mixture is less than that of pure components. So why this occurs? That is because the interactions on mixing becomes weaker. Interaction weaker हो रहा है. So it means vapor pressure is going to increase. इंटरेक्शन वीकर हुआ इसका मतलब टेंडेंसी टू गेट एस्केप इनटू वेपर फेज विल इंक्रीज. अगर टेंडेंसी टू गेट एस्केप टू वेपर फेज इंक्रीज होगा तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा. अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन एंड देयरफॉर मिनिमम बॉइलिंग वाले जो एजियोट्रोप्स है मिनिमम boiling azeotropes form positive deviation solution. They are showing positive deviation solution. ठीक है. पॉजिटिव डिविएशन वाला सोल्यूशन इन लोग शो करते हैं. तो इसका अगर मुझे डेफिनेशन लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी? एजियोट्रोपिक मिक्सचर विथ मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट आर दोज. क्या लिखूंगी मैं? दे हैव boiling point less than that of pure
component. So when boiling point is less, vapor pressure is more. Vapor pressure is more means it is showing positive deviation. Okay. नेक्स्ट करेंगे एजियोट्रोपिक मिक्सचर विथ मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट. मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, सो अभी मैं यहाँ पे एग्जांपल दे देती हूँ. पहले वी हैव नाइट्रिक एसिड जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 359 केल्विन एंड वी हैव वाटर जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 373 केल्विन. अब ये दोनों को मिक्स किया मैंने, तो जो मिक्सचर मुझे मिला है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 393 केल्विन. सो नाउ हियर यहाँ पे क्या हुआ है, boiling point of a mixture is greater than that of pure components. Pure components के comparison में boiling point of mixture is greater. So if boiling point is greater, it means interactions कैसे हुए हैं, stronger हुए. Interactions have become, interactions are stronger of mixture. So when interaction are stronger, tendency to get escape to vapor phase is less, and therefore and इसीलिए क्या होता है, and therefore vapor pressure decreases. Vapor pressure decrease किस में होता है, negative deviation वाले solution में होता है. So maximum boiling point वाले जो azeotrope होते हैं they are negative deviation वाले non-ideal solution. Okay all of you. So this was my last theory topic of this video. Now let's do some numericals on Raoult's law. तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन at 298 Kelvin are 200 mmHg and 415 mm respectively. Calculate the vapor pressure of solution prepared by mixing 25.5 grams of CHCl3 and 40 grams of CH2Cl2 at 298 Kelvin. सेकेंड क्वेश्चन है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, गिवन डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं. सो ये किसका दिया है, प्योर क्लोरोफॉर्म के लिए दिया हुआ है. सो दिस इज P0 CHCl3 that is 200 mmHg. This is for pure CH2Cl2 415 mmHg. I have to calculate is the total vapor pressure of solution, P total. So formula क्या है P total का, P1 not x1 plus P2 not x2. ठीक है, तो अभी मुझे x1 कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले मुझे क्लोरोफॉर्म का और डाइक्लोरोमीथेन का मोलार मास लगेगा. सो मैं अभी ये कैलकुलेट कर लेती हूँ. तो इट विल बी 12 प्लस 1 प्लस 3 इंटू 35.5. तो ये कितना आता है, 119.5 ग्राम पर मोल. Similarly, molar mass of CH2Cl2 will be 12 plus 2 plus 71. 35.5 into 2 that is 71. तो इसका आंसर आता है कितना, 85 ग्राम पर मोल.
अब मैं क्या करती हूँ, मोल्स निकाल लेती हूँ, मोल्स ऑफ CHCl3। तो इसका मास कितना है 25.5 डिवाइड बाय 119.5। ऑल ऑफ यू विल डू दिस डिवीजन। मोल्स ऑफ CH2Cl2 विल बी 40/85। सो सब लोग ये डिवीजन करेंगे और मेरे आंसर्स के साथ में यू विल चेक योर आंसर्स। सो ये कितना आता है 0.312 आता है और ये आता है 0.688। ठीक है, ये हो गया मोल्स। अब मैं निकालूंगी मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3। so this will become 0.312। एक मिनट, ये जो मेरा मोल्स आया है इसका आंसर आता है 0.213। इसका आंसर कितना आता है मोल्स का 0.213। जस्ट क्रॉस चेक कर लो वापस, शायद तुम लोग के जो आंसर्स आए रहेंगे वो सही रहेंगे। 0.47। ओके, तो इसका मोल फ्रैक्शन अभी it will be 0.213 divided by 0.213 plus 0.47. So all of you just do this calculation fast. कितना आ रहा है इसका आंसर 0.312. Okay, so similarly now I'll calculate for dichloromethane X of CH2Cl2, that is 0.47 upon 0.213 प्लस 0.47। तो इसका आंसर कितना आता है, डिवीजन करके चेक करो, इट इज कमिंग 0.688। ठीक है, नाउ आई विल सब्स्टिट्यूट ऑल वैल्यूज इन टोटल प्रेशर का फॉर्मूला। सो 200 इंटू 0.312 प्लस इसका कितना आया है 415 0.688। So do this calculation all of you and you just cross check your answer. So it is coming 347.9 mmHg। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोला है इन लोग ने, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। सो Y of CHCl3 will be what, partial pressure of CHCl3 upon total pressure। तो ये partial pressure according to Raoult's law will be प्योर का into its mole fraction upon total। तो ये कितना होगा 200 into 0.312 upon 347.9। So all of you just do this calculation fast and just cross check your answer with my answer। So it is coming 0.18। Similarly vapor phase में इसका mole fraction will be, फॉर्मूला देखो मैं लिख रही हूँ, तुम लोग को भी सेम आ रहा रहेगा फॉर्मूला। ओके, तो इसका आंसर कितना आ रहा है सबको, इट इज कमिंग 0.82। ओके, तो काफी लंबा सम था बट काफी फॉर्मूलाज इसमें रिवाइज हो गए, काफी कॉन्सेप्ट्स कवर हो गए हैं। सो सिमिलर क्वेश्चंस मैं तुम लोग को होमवर्क में देने वाली हूँ, सो डू दिस वेरी केयरफुली। नेक्स्ट क्वेश्चन, an aqueous solution of glucose is made by dissolving 10 grams of glucose in 90 grams of water at 303 Kelvin. If vapor pressure of pure water is 32.8, what would be the vapor pressure of solution? तो सबसे important है formula। तो all of you formula क्या आएगा यहाँ पे, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग P is equal to P1 is equal to P1 not X1। तो P1 नॉट दिया हुआ है, दिस इज नथिंग बट P1 नॉट। तो P1 नॉट इज
32.8 mmHg. नाउ व्हाट इज x1? x1 के लिए मुझे क्या लगेगा, मोल्स लगेगा. सो मैं सबसे पहले ग्लूकोज का मोल निकाल लेती हूँ. दैट इज 10/180. that is 0.0556. Then I'll calculate moles of water. That is 90/18. That is 5. So now I'll calculate the mole fraction of water. So it will be 5/5 plus 0.0556. तो जस्ट डिवाइड करो इसको, तो आंसर आएगा 0.989. तो P1 will be 32.8 into 0.989. Multiply karo and just cross check your answer. It is coming 32.44 mmHg. Okay. Now next slide pe you have got the homework. There are 4 questions in your homework. You have to solve these questions and you have to come for my next live lecture. And also whatever theory and derivations I have done today, you will study it properly, read it from NCERT or from your module and come for next live lecture. हम लोग कुछ MCQ solve करेंगे इसके. And also I am going to take oral कि तुम लोग को इसका थियरी कितना समझ में आया है, कितना कॉन्सेप्ट समझ में आया है, इसका मैं ओरल लूंगी. सो ऑल ऑफ यू बी प्रिपेयर एंड कम फॉर इट. ठीक है, चलो देन विल स्टॉप हियर. बाय बाय, टेक केयर.